have Mr. Sandeep Israni on the podcast. Should people actually focus on building careers in sales? जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो कुछ भी नहीं करता वो सेल्स करता है. द ओनली करियर वेयर वन यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. टू, the opportunity to become an entrepreneur or the CEO is the highest in sales. Third, the only industry where you will always be young. आपने सेल्स किया अपनी पूरी लाइफ एंड देन आप सडनली डेवलपर बन गए. आज घर बनाने वाले हैं तो मैं घर बेच सकता हूँ, कल गाड़ी बनाने वाले हैं मैं गाड़ी बेच दूंगा, मैं ज्वेलरी बनाने वाले हैं तो मैं ज्वेलरी बेच दूंगा. तो मेरे को तो आपकी बातें सुन के आप मेरे को कुछ बेचोगे तो मैं तो शायद खरीद ही लूँ. करेक्ट है. Why did you decide that I need to start coming in front of the camera and make content? एक सीपी ने सजेस्ट किया एक काम करो सर, वैसे ही इतने सवाल पूछते हैं हम, उससे अच्छा आप ये सब इंस्टाग्राम पे डाल दो और ताकि हम वहीं देख लेंगे. योर सेल्स टीम शुड बी लाइक योर आर्मी. बस बोला इधर जाके गोली मारो तो उन्होंने मार दी, सेल्स हो ही जाएगी. सेल्स अगर कोई बंदा क्रैक कर ले तो and he can sell anything. He's made it in life. Hello and welcome to my very own podcast, The Adhiraj Sethi Circle. My name is Adhiraj Sethi and today we're back with my favorite topic, real estate. Today we're not talking about the buying side of things, we are talking about the selling side of things. Because we have Mr. Sandeep Israni on the podcast. Welcome to the podcast. Thank you, brother. Thank you. Just a quick introduction. Mr. Sandeep is a developer. He is based out of Pune. His company is called the Verma Corp. And he's running content on his Instagram page, which is called the Sales Playbook. And I'm very interested in knowing your journey, and I'm sure people are too. So let's just start with that, sir. थोड़ा अपना journey के बारे में बताओ. How did you start, and what made you lead up into the sales and real estate as a whole? So see, I think so one of the best or noble professions on the planet is sales. Yes. And Very difficult. And सबसे difficult है हाँ. And within sales, the place where you can make good amount of money, where everyone can make good amount of money, is real estate. Okay. So that was the inclination, and that is how I started getting into sales, then real estate sales, and all of other things. I've sold everything. I've sold software, I've sold retail, I've sold fashion, I've sold watches, and then finally understood that real estate sales में जो पैसा बनेगा वो कभी भी कहीं भी नहीं बन पाएगा. True. And I have solid marketing experience. So I started working by selling IBM software. Oh. Okay, this was way back in 2004. Okay. When software was a thing. Yeah. And every IT company in India was buying software. Hanji. One of the best things by working with IBM in terms of selling their software was we understood कि वो कितनी sales aggressive company है. Hanji. Today they do about $70 billion and they are only focused on sales. Okay. I have an incident वहाँ पे सर कि मैं जब गया था पहले 7 दिन we were continuously trained on minute details of sales. Okay. कस्टमर के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब कस्टमर ऐसे बैठा है तो उसका मतलब क्या है, कस्टमर ऐसे देख रहा है तो इसका मतलब क्या है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न. आई थिंक सेल्स में ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंटरेस्टिंग क्या है उसमें जो बात मुझे बतानी है कि 6th या 7th डे था सेल्स में, और उस दौरान 6 ऑफिस बॉयज ज्वाइन हुए थे और वो ऑफिस बॉयज भी सेल्स ट्रेनिंग में थे. ओके. मैं सरप्राइज था. मैंने मैनेजर को जाके पूछा सर ये ऑफिस बॉय सेल्स ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं. तो कहता है कि IBM बहुत सीरियसली लेता है अपने सेल्स को. तो देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग जो वो सेल्स ऑफिस बॉयज को भी सिखाते हैं कि कस्टमर आए तो ग्रीट कैसे करना है, वेलकम कैसे करना है. टू दैट डिटेल द फ्रेमवर्क इज सेट. So वो process है to like change the psychology of the customer from the moment they walk in. Correct. Wow, that's amazing. And now you've recently started doing content. Really great reels you make, very interesting to watch, and people are following and liking it too. Why did you decide that I need to start coming in front of the camera and make content? Sales Playbook जो पेज है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? So first thing, I am 90% of my business is through real estate channel partners in Pune. Okay. And a part of my process or the way I pay back to them is, apart from the commissions that I give them, is I understand where they are lacking in business. तो कभी कोई CP आया, उसका client बेच नहीं पा रहा है या खरीद नहीं पा रहा है या सेल नहीं हो रहा है, तो मैं उसको गाइड करता था, देख भाई तू ऐसे कर. अब धीरे धीरे वो बहुत बढ़ने लगा.
ओके। और ऐसे होने लगा कि सारे सीपीज, मेरा कैलेंडर बुकड है, सर मुझे कुछ सेल्स में गाइडेंस चाहिए, आने दो। हाँ। अब दिन भर मेरा उसी में जा रहा है। तो फिर फाइनली, दूसरों को गाइडेंस देने में। हाँ, तो फिर हाँ। फाइनली एक सीपी ने सजेस्ट किया, एक काम करो सर, वैसे ही इतने सवाल पूछते हैं हम, हाँ। उससे अच्छा आप ये सब इंस्टाग्राम पे डाल दो, हाँ। और ताकि हम वहीं देख लेंगे। ठीक है। और एक्सीडेंट से स्टार्ट हुआ, ओके। वहाँ पे स्टार्ट किया। तो मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल या जो मेरे चैनल पार्टनर्स हैं उनको नेटवर्क में, पहली रील पे करीबन 3 मिलियन के ऊपर व्यूज आ गए, जिसमें वाओ। मैंने सिंपल खाली बोला ये सेंटेंस की जगह ये सेंटेंस बोलो, ये सेंटेंस की जगह ये सेंटेंस बोलो। हाँ। और पता नहीं ऑल ओवर इंडिया से जुड़ गए, तो लगा कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि पावर ऑफ शायद, सोशल मीडिया हाँ, देखने को मिला। देखने को मिला। और लगा कि हाँ शायद कंटेंट चलेगा, तो फिर ओके। उसी हिसाब से चल रहे हैं। एंड आपने एक चीज बोली थी, पॉडकास्ट पे भी बोली थी, अपनी रील्स में भी बोली थी, दैट टू इम्प्रूव द सेल्स, द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ एनी प्लेस इन इंडिया स्पेसिफिकली, सेल्स पे बहुत फोकस करना चाहिए, सेल्स बेटर होना चाहिए, सेल्स पीपल बेटर होना चाहिए। उस थॉट के बिहाइंड क्या आपका रीजनिंग है, एंड व्हाई डू यू थिंक सेल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आज के डेट पे लोगों को? सो आप देखिए कि एग्जाम्पल, आपने अगर कभी भी कोई लग्जरी कार अगर खरीद रहे हो, हम्म। आप ऑडी के शोरूम में जा रहे हो, मर्सिडीज के शोरूम में जा रहे हो, हम्म। तो गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने से पहले तो सेल्स वाला मिल रहा है, हम्म। राइट? वो सेल्स वाले के उस टेक्निकल नॉलेज पे हम्म। वो कैसे इम्प्रेस करता है, आप एक्चुअली अपना मन वहीं बना चुके हो फेयर, या। टेस्ट ड्राइव के पहले ही। फेयर। अब उसी प्रकार से इफ यू लुक एट मार्केट्स लाइक दुबई, ओके। okay, markets like Macau, ओके। markets like New York, ओके। you go and meet the kind of sales people there. See, the sales वाले का जॉब बेचना नहीं है, हम्म। सेल्स वाले का काम है कि उसके कस्टमर को कैसे ग्रोथ अचीव करवाना, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, जो जो सोल्यूशन वो दे रहा है, उसको सोल्यूशन बेस्ट कैसे मिले, ठीक है। राइट? अब दुबई में जाओ तो आपको उनको वास्तु भी पता है। आई एम सरप्राइज दैट आई हैव मेट मुस्लिम सेल्स पीपल हु अंडरस्टैंड हिंदू वास्तु मच बेटर देन आई अंडरस्टैंड। ओह। सो दे हैव इन्वेस्टेड टाइम इन लर्निंग, दे ओके। अंडरस्टैंड द कस्टमर के कैसे समझना है, ओके। ये सारी चीजें। सो वो दे नो हाउ टू गिव द राइट सोल्यूशन। ओके, अब कार तो फिर भी आपको टेस्ट ड्राइव करने के लिए मिल जाएगी, आप पैसे दे दो, एक हफ्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगी, महीने में मिल जाएगी, 2 महीने में मिल जाएगी। Real estate is the only industry where you decide today to buy if you are looking into an under construction thing, और आपको घर मिलेगा 4 साल बाद, या। right? अब which does not exist, something that does not exist, you're selling that. या। या। So imagine the kind of preparation you have, and the gap, because I frequently keep traveling to Dubai, the gap that I see when I meet people there versus the people that I see here, sales people, that there's a huge gap, ओके। which says that huge gap is huge potential. और तो ऑटोमेटिकली जब सॉल्यूशंस और बेटर हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप देखो कि सोशल मीडिया पे एक चीज फैल गई है कि रेंटिंग इज बेटर देन ओनिंग, राइट? आप किसी राइट सेल्स पर्सन से मिलो, वो आपको एनालाइज करेगा और फिर शायद आपको बोल दे हाँ सर आपके लिए रेंटिंग ही सही है, ओके। लेकिन 70% लोगों के लिए आज भी शायद रेंटिंग सही नहीं है, ओनिंग बेटर है, बिकॉज ऑफ द discomfort of buying a home. ओके। They don't get into it, and a right salesperson can guide you. So imagine हमारे पास सब दुबई जैसे, पूरी दुबई में जितने सेल्स वाले हैं और हर जगह अक्रॉस इंडिया, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाओ, कहीं भी जाओ, उस लेवल के सेल्स वाले हैं जिनका नॉलेज और ये सारी चीजें शार्प है। सो कैसे होम बाइंग होगा, कैसे सेल्स होगा, पूरा जो सेक्टर है ये होगा। सी मोदी जी कहते हैं कि हाउसिंग वुड बी द बिगेस्ट सेक्टर व्हेन वी व्हाटएवर $1 trillion he is aiming at, housing will still own a majority chunk there, right? And then we need to be prepared for that. ट्रू। एक्चुअली क्या होता है ना, इंडिया में सेल्स को एक थोड़े नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखा जाता है। इफ समवन इज ट्राइंग टू परसुएड यू, कन्विंस यू टू बाय समथिंग, यू लुक एट देम एट समथिंग कि वो अपना कुछ hidden agenda से कर रहा है, यू नो दैट। तो you don't tend to listen to them, and that I think thought needs to be changed in the customer's perspective also sometimes. तो मे बी हमारी डिस्कशन की वजह से शायद कस्टमर्स को भी थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले एंड दे लर्न डिफरेंटली। या अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क, आपने सेल्स किया अपनी पूरी लाइफ एंड देन आप सडनली डेवलपर बन गए। उस जर्नी में ये स्विच कैसे आया कि अब मैं डेवलप करना चाहता हूँ मोर देन जस्ट सेलिंग थिंग्स? So see, 78% of entrepreneurs have done sales. Okay, yeah. Okay.
and 69% of CEOs are selected based on whether they have done sales or not. Yeah. Every organization lives on one single factor is customer. Yeah. If there is a paying customer, then the organization will grow. Yeah. Right? So सबसे बड़ा difficult वाला चीज तो मैं कर ही दिया था. Right? अब था, क्योंकि देखो क्या है, आप अगर बेचने की काबिलियत है तो बनाने वाले हैं ही. राइट. तो आज घर बनाने वाले हैं तो मैं घर बेच सकता हूँ, कल गाड़ी बनाने वाले हैं मैं गाड़ी बेच दूंगा, कुछ ज्वेलरी बनाने वाले हैं तो मैं ज्वेलरी बेच दूंगा. सो व्हाट एवर द डिमांड इज, इफ देयर इज अ राइट सेल्स पर्सन, ये सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. बिकॉज even today in real estate, there are good developers who have a corporate structure, they are very professional and all of those things, versus an unorganized sector. सबको sales का problem है ही है. Okay. Right? So अब मैंने अपने कंपनी में वो प्रॉब्लम ही हटा दिया है. कैसे? क्योंकि अब लॉन्च करो, सेल्स स्ट्रैटेजीज इतनी सेट है हमारी कि लॉन्च करते हैं. तो आपके इन हाउस ही है सारी सेल्स? इन हाउस मैं अगर आपको उसमें बताऊं तो मेरे पास सिर्फ 6 लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर करीबन 350-400 करोड़ का माल बेचा है. क्यों? क्योंकि मैं 90% बिजनेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन लीन है. 90% ऑफ माई बिजनेस कम्स ऑन चैनल पार्टनर्स. तो वो जो 350 करोड़ के लिए मेरे पास 350 चैनल पार्टनर्स भी दौड़ रहे हैं. और हर एक 1-1 करोड़ भी बेच दे तो मेरा माल बिक जाता है. ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग. एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, अगर आप, जैसे आपने बोला आपके 6 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन बिल्डिंग a sales team as a whole, even not just for a developer or for any company in general? Hiring difficult होती है, training difficult होती है, retaining difficult होती है, evolve करना difficult होता है. What's the most difficult in your opinion? So see that जो सबसे बड़ा चीज़ है, मैं जब भी हायर करता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम धंधा नहीं करोगे ना तो मैं कभी निकालूंगा नहीं. Okay. लेकिन तुमने मेरे जो स्ट्रैटेजीज के साथ अगर तुम मेरे अलाइन नहीं हो तो अगले दिन निकल जाओगे. ओके. सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, द प्रॉब्लम इज, लोग ना सेल्स टीम को फैमिली की तरह देखते हैं कि मैं थोड़ा प्यार से बात करूंगा या डांट के बात करूंगा, थोड़ा मोटिवेट करूंगा तो काम हो जाएगा. योर सेल्स टीम शुड बी लाइक योर आर्मी, यू शुड बी द कमांडर. इसका मतलब वहाँ खड़ूस कल्चर है ऐसा नहीं है. राइट? आर्मी का मतलब ये है कि दे सो डिसिप्लिन्ड इन सेल्स कि उनको सही तरीके से जब गाइड किया जाए, बस बोला इधर जाके गोली मारो तो उन्होंने मार दी, सेल्स हो ही जाएगी. अच्छा, वाओ, आपकी स्ट्रैटेजीज इतनी एक्यूरेट है. तो ये सीक्रेट्स कब शेयर कर रहे हो आप? बस आप सवाल पूछते जाओ, मैं करता हूं. ठीक है, तो सवाल मेरा नेक्स्ट यही है. आज की डेट पे लीड जनरेशन बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू मे बी 10-15 years बैक. इट्स मोर ऑफ ऑनलाइन, गेटिंग ऑन ads, meta ads, and making content. That's what we're doing right now also. आपके ओपिनियन में जो आज की डेट की लीड्स है, आर दे easier, cheaper to get compared to earlier, और expensive, harder to get? कस्टमर भी थोड़ा स्मार्ट हो रहा है कि कैसे किसको अप्रोच करना है, किसको नहीं करना. 4 जगह अपनी इंफॉर्मेशन डाल के वो सबसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं किसके साथ आगे बढ़ना है. सो व्हाट्स चेंज्ड इन द इंडस्ट्री? सो लीड जनरेशन का कॉस्ट बढ़ता गया है और बढ़ता ही रहेगा. कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट बढ़ता रहेगा. सी, इंडिया फॉर नेक्स्ट 15-20 years will be on ROPO model. What is ROPO model? Is research online, purchase offline in real estate. True, very true. Okay. Now what is happening is, अब कस्टमर का ऑब्जेक्टिव है रिसर्च ऑनलाइन. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो भी बंदे लीड्स चला रहे हैं उनको, जो कस्टमर है उनको एक मेंटल किक चाहिए कि मुझे रिसर्च करनी है. और उनको उतना इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, इसलिए वो 4 जगह लीड भर रहे हैं. राइट? आप अगर एक अच्छी एड चला रहे हो, आपका 90% जो लोग लीड जनरेशन कर रहे हैं उनका लैंडिंग पेज देखो, रियल एस्टेट में एक सिंगल बैनर रहेगा, उसके नीचे एमिनिटीज, उसके नीचे स्पेसिफिकेशंस, ये फ्लोर प्लान मास्ट रहेगा कि डाउनलोड करने के लिए लीड फॉर्मेट करो, इंक्वायरी फॉर्म पॉपअप करता रहेगा. अरे भाई, कस्टमर को रिसर्च करना है. तुम्हारे लैंडिंग पेज पे कितने इंटरेस्टिंग उसके रिसर्च के पॉइंट्स क्लियर होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाएगी कि वो आपके पास लीड भरे कि नहीं. राइट? एंड दिस इज वेयर मोस्ट यूजर्स आर फेलिंग. कंटेंट भी आप देखो, जो इंस्टाग्राम पे रियल एस्टेट कंटेंट चल रहा है, अब क्या करते हैं ब्रोकर्स, दरवाजा खोलते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ, ये फ्लैट है, इधर ये है, इधर ये है. भाई अब वो कंटेंट डेड हो गया. इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी आपकी 10-10 साल चलेगी या 2 साल चलेगी, 2 महीने चल गई, बड़ी बात है. कस्टमर रिसर्च मॉडल में है. आप क्या
बाजू के सोसाइटी में या बाजू के एरिया में जाके किसी को पूछ सकते हो कि सर इस एरिया में रहना कैसा लगता है। सड़क पे जो स्ट्रीट वेंडर है उसको पूछो भाई ये एरिया कैसी है। कस्टमर वैसा रियल टाइम रिसर्च वाले इंसाइट्स चाहता है। अब वो Very दो, true. आपका लीड जनरेशन भी कम होगा, आपका कंटेंट वायरल भी बहुत होगा और राइट लोग आपसे जुड़ेंगे। Wow, yeah, that makes complete sense. Thank you for sharing that. That's actually very true. आपने अपने कंटेंट में नेटवर्किंग की भी बहुत ज़्यादा बात करी है, even in your TEDx that you spoke. I want to know आज की डेट में नेटवर्किंग करने का बेस्ट तरीका क्या है, एंड नेटवर्किंग इतनी इम्पोर्टेंट आज भी क्यों है? सो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ इस पे। रियल टाइम किस्सा है। मैं गया था IIM संबलपुर एक इवेंट पे। ओके. और वहाँ पे गया और वहाँ से आते आते मुझे फ्लाइट में, मतलब मेरे साथ एक को स्पीकर थे कनिष्क अग्रवाल। हाँ जी. अब नेटवर्किंग में मेरा इंटेंशन नहीं होता है कि मैं सामने वाले से कुछ लूँ। नेटवर्किंग का प्रॉब्लम ये है, अगर आपका इंटेंशन है कि मेरे को सामने वाले से कुछ वसूल करना है तो आप राइट नेटवर्किंग कर रहे नहीं है। ओके. नेटवर्किंग को सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं। हाँ. अच्छे फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स ये बनाने हैं। तो कनिष्क अग्रवाल मेरे फ्रेंड बन गए। ओके. मैं जब अच्छा, मेरा स्टार्ट में इंटेंशन था कि मुझे सिर्फ अच्छे दोस्त बनाने हैं। तब मैं नहीं जानता था वो कितने बड़े आदमी हैं, कितनी कंपनीज चला रहे, ना ही मेरा कोई इंटेंशन था। हम आते समय संबलपुर से हम फ्लाइट लेके कलकत्ता आ रहे थे, तो वो साथ में फ्लाइट में बैठे थे हम। तो वहाँ पे कुछ बातें चली, वहाँ पे दोस्ती बनी। तब तक भी मैं नहीं जानता था वो क्या जानते हैं। बस फिर उसके बाद फिर से दोस्ती हुई। एक बार मैं फिर दिल्ली आया तो दिल्ली में उनसे फिर से मुलाकात हुई। ऐसी सारी चीज़ें होती गई और करीबन 1-1.5 महीने की दोस्ती के बाद उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी बताई कि अरे यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेगा ना तो तेरा अच्छा रिटर्न आएगा। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे बात जेन्युइन लगी, मैंने भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया। करीबन 2-2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी और वो करके विद इन 3 to 4 months मैंने 2-2.5 करोड़ पे 2-2.5 करोड़ बना लिए। वाह. अब पॉइंट ये है कि अगर मैं स्टार्ट में वो फिगर रखता हूँ कि मेरे को है ना ये आदमी से 2.5 करोड़ बनाना है, तो यू विल फेल. The point is you just be friends, right? The moment you are friends, and it's a natural evolution of that relationship. True. Things will match, vibes will match. If it matches, you continue the relationship. If it doesn't, you just हालचाल करते रहो उससे बीच में भाई सब. I think as a whole हमारी generation ही थोड़ा lag करती है in making just friends. It's very like intention driven. कुछ ना कुछ thought रहता है behind, and that's where we go wrong when we're networking. वही थोड़ा सा issue है. Another thing that I wanted to ask about was some simple sales tactics that you can list out right now, maybe 3, maybe 4, that will be really helpful for brokers in India, for real estate agents, for channel partners, कि आप ही की eventually sale बढ़ेगी अगर वो better होंगे, is what you said, and that makes sense. तो 3-4 simple sales tactics for in your opinion. पहला चीज, मतलब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा कि कृष्ण खड़े थे और अर्जुन ने सवाल पूछे. अर्जुन ने सवाल पूछे तो गीता निकली. राइट. अब मेरा सवाल ये है कि दुर्योधन वहां पे होता तो अर्जुन सेम गीता देते, सॉरी कृष्ण सेम गीता देते? Maybe not. चेंज हो जाता है, राइट. सो जब आप सवाल पूछ रहे हो कौन सा बंदा किस लेवल पे है सेल्स के, आंसर उस हिसाब से चेंज हो जाता है. तो इसके 3 पार्ट्स के सिंपल आंसर है. अगर आप फ्रेशर हो, ओके, तो आपके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है. जितने प्रॉपर्टीज लेगवर्क करके देख सकते हो, मतलब आप सिर्फ देखो, जाओ वो सेल्स कैसे कर रहा है, क्लाइंट के साथ बैठ के जितने प्रॉपर्टीज, और ना सिर्फ आपके सिटी में, आपको हॉलीडे पे जाना है ना दूसरे सिटी पे चले जाओ. आज भी मेरे को हॉलीडे करना रहता है ना, मैंने तो दुबई तो एक बार जाना ही है. और दुबई में पार्टी वार्टी तो रात को करो, दिन को सिर्फ हर एक सेल्स वाले के यहाँ जाके देखो बेच कैसे रहा है. तो ये सबसे बड़ा है अगर आप फ्रेशर हो. ठीक है. अगर आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो तो आपको मार्केटिंग और टीम मैनेजमेंट, ये 2 सबसे बड़े स्किल्स सीखने चाहिए. क्योंकि ये देखो, ये
खेल पूरा, ये बिजनेस पूरा, ये धंधा पूरा आपके बंदों पे है, आपके बच्चों पे है। True. आपके बच्चे कैसे काम करते हैं वो आपका स्किल है टीम मैनेजमेंट पे, और बच्चों को सही तरीके से चलाने के लिए एज अ टीम लीडर आपको मार्केटिंग से लीड्स जनरेट करके उनको देनी है। तो मिड सेगमेंट में ये है। हाँ जी। टॉप सेगमेंट में हो आप, सीजन सेल्स वाले हो और ये सारी चीजें हो, अब आपको सिर्फ फोकस करना है कि ये मॉडल को कैसे स्केल्स करूं, क्योंकि बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स इंडिया में क्या है, सब सचिन तेंदुलकर है लेकिन बहुत कम कम कंपनीज धोनी बन पा रही है। So they are good batsmen, but as Dhoni, that they want to scale this model and manage a team and make it a large organization and make the country win World Cup, वैसे वाले लोग कम है. So this is where it starts. Wow, you heard it right here. Very well explained. Thank you for sharing all that you have. This was the general discussion with Mr. Sandeep. Already so much information coming out. I'm getting to learn so much. I'm sure you guys are too. We are now moving to the next segment, which is the hot seat segment, where I will ask you some rapid fire like questions and you have to be quick and quirky with your answers. Okay? So we will catch you guys in the hot seat segment now. Welcome back. We are now in the hot seat segment where I have some quick rapid fire like questions for Mr. Sandeep, and I'm sure you're going to do very well. So let's just start with it. My first question is cold call script, short or long? Which is better? Very, very short. Objective is to get something, either a site visit or time for the next call. Okay. WhatsApp follow up, daily or every other day or something else? Random WhatsApp follow-ups, but the message has to be apt for him to reply. Best time to call a lead, mornings or evenings? हर समय बेस्ट होता है जब भी धंधा है. Okay. CRM, spreadsheets or some specialized tool? CRM with a mobile app. Okay. Which mobile app? So any CRM that has a mobile app. Oh, okay. First meeting priority, rapport building or product showing, product specs telling, things like that? 70% rapport building, 30% product showing. Okay. Demo flat or 3D rendering, which one closes faster? Demo flat. The more you can actually visualize, whatever you can visualize more, you will sell more. Okay. Sales composition, fixed plus variable or just pure commission? First 6 months, 6 plus variable. If you're performing well, shift to variable. Okay. Team size for 100-unit launch, small hustlers or a large squad, which is better? Maximum 2 people and rest channel partners. Okay, so small hustlers basically. Social proof, testimonials or celebrity endorsements, which are better? Customer testimonials, at least 100. Okay. Celebrity endorsements help in your opinion? It helps, but when you are, celebrity endorsements is just mind share. So अगर mind share लेना है मेरे को मेरे project का तो ठीक है. Okay. But trust तो customer testimonial से आता है. Okay, fair. Hot lead definition, less than 24 hours में reply आया या 3 days के बाद reply आया, what is better? नहीं, so that's not the definition. Customer कभी भी reply कर सकता है. Maybe he is busy, maybe other brokers are contacting him, so that doesn't depend. Okay, so but how do you define a hot lead then? So hot lead I defined is, 3 qualification parameters. He's okay with the budget, he's okay with the location, he's okay with the possession time. Okay, yeah, very precise. One phrase that kills a deal, what is it? Cold calling, it says, sir मैं क्या आपसे बात कर सकती हूँ? Kills it. Booking में within first meeting, तो सर आप decision कब लेंगे? Pressurizing them to... Exactly. What should they say instead? How can we take this ahead? Would you like to show it to your family? Can we come back again? Or can I come to your home for a face-to-face for a discussion? A lot of other things. Oh, okay. Home buying will never happen in one meeting. So the objective of first meeting should be to get the second meeting. The objective of first meeting rarely should be to get a sale. Okay, fair. One habit all top closers share. Apart from they smoking a lot, is they manage their lead funnel amazingly. Okay. So there are so many people in their top of the funnel that bottom of the funnel से bookings निकलती जाती हैं. Oh, so they're focusing a lot on getting as many leads as possible. Okay. Cold lead revival, email drip or direct call? Direct call, accidental face to face. घर पे चले जाना. आपने ऐसे कभी किया है?
मैं आपको इस पे बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ. माय फर्स्ट जॉब, हाँ. okay, I'm with the IBM, Okay. and we are in a mega event, okay, Okay. Pune's 5-star hotel and all. हम्म. अंदर सेमिनार चल रहा है, आई एम मैनेजिंग वॉक-इन्स देयर, ठीक है. और एक कस्टमर बाहर निकला वॉशरूम जाने के लिए, हाँ. ठीक है. मेरा फर्स्ट जॉब, आई एम लाइक 21-22 ईयर्स ओल्ड. तो मेरा बॉस बोलता है वो वॉशरूम गया है, जा तू भी मूत के आ. एंड हाँ. दैट लाइक हर्ट मी. हाँ. सर मेरे को नहीं लगी. हाँ. हाँ. नहीं जा. और जब बाहर निकले तो दोस्त बना के आ. Oh. And that was such an interesting insight. What happened was, so whenever you're in an expo, event or an exhibition, Yeah. आप बाहर जितने दोस्त बना लेते हो पहले, हाँ. एक्सपो खत्म होने के पहले, इवेंट खत्म होने के पहले, विल डिफाइन वेदर यू विल सेल इट और नॉट. और हुआ क्या, हम्म. वो बात मैंने नेक्स्ट इवेंट में इतनी अप्लाई की कि कस्टमर को स्टार्ट में अच्छे से वेलकम किया, जब वो चाय कॉफी पी रहा है इतना अच्छा वेलकम किया, ये हुआ. फिर होता क्या था, एंड में क्या कहा जाता था, बाहर हमारी सेल्स टीम है, हाँ. अब कब उनको जाके मिलो. अब होता ऐसा था, मैक्सिमम लोगों से मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, हम्म. अब सब मुझे जानते हैं वर्सेस मेरी कंपटीशन के. हम्म. जब इवेंट खत्म होता था, मेरे पास लाइन लगी रहती थी लोगों की कि ये मुझसे मिलेगा, ये फ्री हो तो मिलूं, और मेरे पीयर्स खाली बैठे रहते थे. तो बोले, तूने ऐसा क्या किया साले, जो कस्टमर तुझसे ही मिलना चाहते पता है चंकी पांडे ने भी एक शो में बोला था मेरे सबसे ज्यादा नेटवर्किंग वॉशरूम में होती है. करेक्ट. Yeah, very funny though. Most underrated skill in real estate sales. वास्तु. वास्तु. Knowing वास्तु very important in India ना. काफी लोग वास्तु के हिसाब से ही घर लेते हैं. लेते हैं. And Even as a developer, you have to, I think, take so care we of a see, lot of things. as a developer the challenge is, मैं एक फ्लोर पे अगर 4 फ्लैट बना रहा हूँ तो चारों घर वास्तु के हिसाब से नहीं हो सकते. Obviously. बट एज अ सेल्स पर्सन, इफ यू नो वास्तु वेरी वेल, Hmm. एंड इफ यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, you can pitch him the right product. Hmm. You And can share information. yes, and knowing vastu is like, malab, you will be able to sell at least 30% more deals. Okay, okay. And finally, for the hot seat segment, sales playbook, teach teams or hire coaches. Teach teams. Okay. That's more important. Yeah. I think a 10 on 10, like I expected it to be. Very rapid answers, very quick. Will I very get a informative. Karan Johar hamper or something? सब पूछते हैं मुझसे. I think रखना ही पड़ेगा अब तो. But yeah, that was the hot seat segment. I hope you got to learn something while having fun with it. And we are now moving to the Finance 101 segment, where we are going to be talking about the business side of things, talking more in depth about numbers, about actual figures, about actual margins. And yeah, so we're moving to the Finance 101 segment now. See you there. Welcome back. We are now in the Finance 101 segment, where I want to understand some numbers, some business side of things. तो आपसे सबसे basic question से ही start करते हैं. Being a developer, when you look at your sales and the economics of those sales, what are the most important metrics for you that you track? And in these metrics, what are good numbers to maintain for people who are doing this? See, as a developer, you have a marketing budget, which is of your total project cost. Okay. Particularly within Pune market, Delhi is different, Gurgaon is different based on the segment you have. So I have a benchmark of about 5 to 7% should go of the total project cost. Okay. In marketing. Okay. So if I have a 100 crore project, 7% is 7 crores is what I would spend, of which about 4 to 5% is purely for channel partners. Okay. Okay, because they will sell 2% पे आजकल कोई बेचता नहीं है, तो 3%, 4%, 5% is an escalated slab. अच्छा रेट्स बढ़ रहे हैं क्या इंडिया में भी बढ़ रहे हैं? Basically, हाँ. I've heard Dubai में is 5% commission. Dubai is 5%. Some developers offer 8% also. So basically, जितना आप turnover देते हो developer को, the way you are committed to a developer वैसे होते हैं. Okay. So flat start entry is about 3%. Then you sell more, you get 4. If you sell lot, then 5% depending on that. Okay. So my average 4% goes to channel partners. ठीक है. 1% goes in my team and my office and all of those things. Basic, not the Fixed construction cost of the office, but just salaries and all of those things. And 2% goes on direct marketing, my digital spends, brochure printing, outdoor, radio, and all of those things. Okay. So that's a typical this thing. ठीक है. So these are good numbers to maintain. आपने जैसे marketing budget की बात करी, आज भी a lot of developers हो गए, brokers हो गए, they treat marketing budget separately compared to their sales budget.
In my opinion, it should be combined in Combined, a way. ideally it is combined, is always helpful that way, Yeah. because then you can actually measure very effectively, because it's ultimately वो total खर्चा ही है sales and marketing का. So अगर मैं उसमें आपसे पूछूं, अगर मार्केटिंग और हमने सेल्स का बजट कंबाइन कर लिया, अब उस द रीजन वाई पीपल कीप इट सेपरेटली इज बिकॉज दे वांट टू ट्रैक इट सेपरेटली, बट अगर हमने कंबाइन कर लिया तो उसमें कौन से मेट्रिक्स है दैट कैन टेल मी दैट okay, this is performing better than what I was performing with earlier? So one is your overall, we call it CPA, cost per acquisition. Okay. Your overall CPA across all marketing media mix. यानी आपका सारा खर्चा करने के बाद इतने बुकिंग आए, यानी मैंने पूरा 7 करोड़ खर्चा किया और मेरा 100 बुकिंग आए, तो मेरा पर 7 करोड़ डिवाइड बाय 100, मेरा पर पर्सन मेरा 7 लाख रुपया लग गया. ओह वाह, राइट, इतना हाई जाता है? सर बहुत एक्सपेंसिव है रियल एस्टेट सेल्स, Okay. और पैसा इसलिए ज्यादा है. Okay. So, ये एग्जांपल था, बट अलग अलग मार्केटिंग मिक्स है. अब इसमें ब्रांडिंग में भी कुछ खर्चा होता है. आज मैंने प्रिंट एड दे दी. ओके, आज प्रिंट एड्स आर नॉट वेरी चीप. फुल पेज एड, टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे एडिशन 20-30 lakhs, बॉम्बे एडिशन 50-60 lakhs, दिल्ली एडिशन 50-60 lakhs. So they have one day ad cost. Okay. Now I cannot attribute that entire expense to sales. I have to attribute some of it, amortize it to branding also, brand value also. हाँ, because मेरा brand equity भी बढ़ रहा है उससे, but मेरा उस प्रोजेक्ट पे तो खर्चा हो ही गया है. राइट. सो मैं एज अ CPA देखूं, कॉस्ट पर एक्विजिशन देखूं, तो प्रिंट आउटडोर से बहुत एक्सपेंसिव है. मेरा डिजिटल CPA देखूं, कॉस्ट पर एक्विजिशन देखूं, तो 1-1.25 लाख तक आ जाता है फॉर अ 1 crore ticket size product. What's the cheapest in terms of CPA for you? Which channel? So cheapest has been about 30-35,000 also. वो कौन सा चैनल दे देता है? Which is cost per referral, CPR. Okay. So how are you managing your referrals really well? Okay. Because not many referrals will take money. So we have a referral program in a company जिनमें हम per unit clients को इतना दे देते हैं. हाँ जी. But बहुत सारे clients अपने भाई बहनों के लिए या family वालों के लिए तो वो पैसे लेते नहीं हैं usually. So my your referral as a sales industry आप कितना दिखते हो वो आपका बहुत अच्छा होगा, lowest होगा. एंड एज ए डेवलपर, आप जब इन्वेस्ट करने की सोचते हो कि मेरे को अपनी सेल्स ड्राइव करनी है, बूस्ट करनी है, वेयर डू यू लुक एट मोर? लाइक शो फ्लैट्स बनाने में, ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने में, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करने में, व्हाट सेगमेंट इज द मोस्ट? सो आई विल टेल यू व्हाट मार्केट इज डूइंग वर्सेस व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट एंड व्हाट इज हेल्पिंग अस. हाँ जी. एक डेवलपर यूजुअली बहुत एग्रेसिवली फोकस करता है, लीड जनरेशन पे ही पूरा खर्चा करता है. हाँ जी. तो वो क्या करेगा, सारे टैक्टिकल कैंपेन्स करेगा जिससे लीड्स इमीडिएटली जनरेट हो जाए. बट इफ यू शिफ्ट दैट माइंडसेट टू ओनली ब्रांड बिल्डिंग, Okay. I'll tell you one marketing expense that I did, and it has, मेरा brand equity भी बहुत बढ़ गया और मेरा referral भी बहुत बढ़ गया. What is it? वो हमने क्या किया, पूना में गणपति बहुत मानते हैं भगवान को, राइट. तो मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और पोजीशन तो 3-4 साल बाद है, तो फर्स्ट ईयर करीबन 250-300 फ्लैट बिके थे. Okay. अब मैंने क्या किया, 7 days का गणपति अपने सेल्स ऑफिस में रखा. उसमें मैंने 250-300 जितने फ्लैट बिके थे उतने गणपति रखे, छोटे छोटे, प्योर इको फ्रेंडली शाड़ू माती के हम गणपति लेकर आए. Okay. हर एक के फ्लैट नंबर के साथ गणपति था. Okay. 250-300 idols in one hall. And then we invited all our customers that we have installed a Ganesha idol on your behalf. Come and join us, know your neighbors, थोड़ा सा पूजा करो अपने गणपति का, and all of this. All of them came. दिन में 2 बार मेरे पास ऐसे लोग थे जो आसपास रहते थे, वो सुबह भी आते थे, शाम को भी आते थे कि उनका गणपति है, उनके घर का गणपति है, राइट. और उन्होंने किया, बहुत अच्छा कम्युनिटी बिल्डिंग हुआ, नेटवर्किंग हुआ. एंड इंटेंशन मेरा वो नहीं था, बट मेरा ब्रांड वैल्यू इतना बढ़ गया क्योंकि आज एक बंदा आ रहा है मेरे ऑफिस गणपति की पूजा करने, तो वो अपने दोस्तों में बात करता है ना, अरे बिल्डर के ऑफिस जाना है, हमारा गणपति रखा है, अरे वाह तुम्हारा बिल्डर इतना अच्छा है ये. और मेरा रेफरल बहुत बढ़ गया उससे, मेरा ब्रांड इक्विटी बढ़ गया. एंड नाउ आई कंसिडर दिस एज अ मार्केटिंग एक्सपेंस. सो यू स्पेंड ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग, यू स्पेंड ऑन दिस. हम मतलब बहुत सारी चीजें मैं डेवलपर्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर 6-7 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए तो इंटर सोसाइटी IPL रख लो, खर्चा करो, अपने मार्केटिंग से खर्चा करो. प्रॉब्लम क्या है ना, डेवलपर पोजीशन के बाद भाग जाता है कस्टमर्स के सामने. उसको डर लगता है सब आके मेरे कंप्लेन करेंगे, और हम ऐसे डेवलपर हैं जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उसमें खुद ही रहते हैं.
So we live with our people that way. Right? So my partner Sanjay Verma, he lives in his own project where he has delivered. So what ट्रस्ट फैक्टर एक रहता ट्रस्ट है. फैक्टर बहुत बढ़ जाता है उसमें. सो स्पेंड एट द राइट प्लेस रादर देन इफ यू ओनली स्पेंड ऑन टैक्टिकल कि आज सिर्फ लीड जनरेट हो गया, ये कभी ना कभी फेल होगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा. ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. आपने जैसे बोला दैट ये एक्टिविटीज है एक तरीके से जो थोड़ा टीम बिल्डिंग करते हैं, एक कम्युनिटी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. We did another thing last year where we applied for World Book of Records. Okay. And हमने वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिया बनाया अपने साइट पे. ओह. और सारे कस्टमर्स को इनवाइट किया दिवाली पे. और दिवाली के मतलब मेन लक्ष्मी पूजन के दिन नहीं, बट एक हफ्ता पहले जब वो थोड़ा फ्री होते हैं. और वहां पे तेल रखा गया था सबके लिए. सब लोगों को कहा गया अपने अपने फ्लैट का थोड़ा प्रेयर करके उसमें तेल डालो. सब लोगों ने तेल डाला. एंड दैट डे वी वन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिया. वाओ. Now these are community building examples where customers will come. हमने उनके लिए खाना वाना सब रखा था, गैदरिंग रखे थे, गेम्स रखे थे. This will work more. So ये इंडिया में थोड़ा कल्चर से रिलेटेड चीजें ज्यादा काम. और वो आते हैं अपने पड़ोसी को मिलते हैं. अब घर का पोजेशन 4 साल पहले बाद मिलेगा, अभी से ही वो अपने पड़ोसी को मिल रहा है, दोस्ती बढ़ रहा है, सोसाइटी में कौन रहेगा. सो जो आइस ब्रेकिंग पोजेशन के बाद होनी है वो ऑलरेडी हो चुकी है. Yeah. Wow, very well done. That's very interesting what you guys have done and are doing. Coming back to the theme of the segment, finance, I wanted to understand, like, as जब आप ROI calculate करने की कोशिश करते हो, like you said 90% of my sales happen through channel partners. What kind of a cost do you attribute to those channel partners कि मैंने इस पे क्या खर्चा किया, and उस बेसिस पे आप अपना ROI कैसे कैलकुलेट करते हो कि मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग चैनल पार्टनर ये है, ये नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. So see, सबसे ज्यादा एट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आसान चैनल पार्टनर्स में ही है. Okay. वो बेचारा मार्केटिंग करता है, कोल्ड कॉलिंग करता है, कस्टमर की विजिट करवाता है. ये सब करने के बाद जब डील हो जाती है तो वो तब भी पैसा नहीं मांगता. जब कस्टमर एग्रीमेंट कर लेता है वो बेचारा उसके बाद पैसा मांगता है. तो एज ए डेवलपर मेरा ROI हाईएस्ट है चैनल पार्टनर्स के साथ. बिकॉज सक्सेस से मेरी कोई रिस्क ही नहीं है ना वहाँ पे. वो बेचारा रिस्क लेके चल रहा है, वो रिस्क लेके चल रहा है. राइट. और मेरे पास तो एज ए डेवलपर मेरे पास 100 चैनल पार्टनर्स हैं. लेकिन वो एज ए चैनल पार्टनर्स उसके बाद 4 या 5 ही प्रोडक्ट होंगे उस लीड के लिए. उसके लिए भी मार्केट खुला है, लेकिन जो वो लीड जनरेट कर रहा है मेरे सेगमेंट के लिए, वैसे प्रोडक्ट्स तो 4 या 5 ही है मार्केट में. तो वो पूरी रिस्क वो उठा रहा है. तो मेरा ROI हाईएस्ट है चैनल पार्टनर्स के साथ. जैसे आपने बोला 4 ही 5 कभी कभार प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट के. आज की डेट में लॉट ऑफ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स आर बीइंग सोल्ड, एंड उसमें मैंने देखा है दैट हायर कमीशन इज आल्सो चार्ज, एंड उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम नॉर्मल. व्हाई इज दैट? वो जस्टिफाइड है कि नहीं, और कुछ उसमें चेंज होना चाहिए इन योर ओपिनियन? सी क्या हो रहा है आज, एक सिंपल चीज, अगर आप मेटा पे कोई ऐड चला रहे हो 50 लाख रुपए के घर के लिए, राइट, तो वहां पे ऑडियंस है, आपको 10 लीड आ जाएंगी 50 लाख रुपए के घर के लिए. लेकिन अगर आप 3 करोड़ का घर के लिए ऐड चलाओ तो आपको लीड नहीं आएगी. 50 लाख रुपए के घर के लिए आपको कॉस्ट पर लीड आ गई 500 रुपए. 3 करोड़ के घर के लिए आ गई कॉस्ट पर लीड आपको 3000 रुपए. ठीक है. अब ऐसी 10 लीड्स आएंगी तो आपकी एक साइट विजिट होगी, यानी आपने 30,000 रुपए आपका कॉस्ट पर विजिट निकलता है एज अ ब्रोकर. राइट. 30,000 रुपए प्रैक्टिकली नोट खर्चा किया है आपने और एक विजिट करवाई है. और ऐसे 15 से 20 विजिट निकली तो जाके शायद एक बुकिंग हो, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में कस्टमर को सब चाहिए, उसके चॉइसेस, फिल्टरेशन प्रोसेस बहुत बढ़ जाता है. अब वो 20 साइट विजिट करा रहा है, यानी 5 से 6 लाख रुपए वो बेचारा अकेला खर्चा कर रहा है एक डील. तो उसको 3% पे डील कैसे पुरवेगी? राइट. सो दैट्स व्हाई व्हाट डेवलपर्स ऑफर इज ईदर थ्रू मार्केटिंग सपोर्ट और थ्रू कमिटमेंट्स. उनको हम यूजुअली कहते हैं, जो चैनल पार्टनर्स हमारे साथ AOP करते हैं, AOP इज एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, वेयर दे से दैट एनुअली वी विल गिव यू दिस मच ऑफ बिजनेस. वी ऑफर देम हायर परसेंटेजेस एंड जस्टिफाइज. सी आज समझो कि आज सिंपल है, मैं एक डेवलपर सोचूं ना कि मैं मेटा पे दिन का 5 लाख का बजट भी चलाऊं, मेटा ऐड कंज्यूम ही नहीं करने देगा. बिकॉज वो बजट रिस्ट्रिक्शन लगाता है. आप बोलो मेरे पास 5 लाख रुपए पर डे है, बट वो फिर भी आपकी ऐड डिलीवर नहीं करेगा. बिकॉज उसको चाहिए कि राइट ऑडियंस के पास ही जाए, वरना लोग मेटा पे आना बंद कर देंगे. राइट. सो दे आर नॉट
इंटरेस्टेड इन दैट. हाँ जी. सो मुझे जब 10 चैनल पार्टनर्स मेरे लिए ऐड चला रहे हाँ हैं, जी. मेरा मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरा प्रमोशन कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इज आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माय टाइम टू मार्केट. हम्म. तो जो सेल मेरी 6 महीने में होनी थी, ये 10 चैनल पार्टनर्स मिलकर 2 महीने में कर रहे हैं. ओके. कभी कभार ऐसे भी तो होता होगा ना कि कुछ कैंपेन्स आपने रन किए और वो बिल्कुल ही फेल हो गए, एक भी सुपर. विजिट नहीं आया, एक भी बुकिंग नहीं आई. उसको आप फिर कैसे अपने बुक्स में नोट करते हो? सो संक कॉस्ट बेसिकली है वो? वो तो संक कॉस्ट नहीं है. जैसे एक कैंपेन, जैसे मैं अपने डिजिटल एजेंसी के साथ या मेरी मार्केटिंग के बंदी के साथ मैं क्या कहता हूँ कि एक कैंपेन चलाई जहाँ 5 लाख की कैंपेन चलाई, हाँ जी. इसमें से लीड नहीं आए. हाँ जी. फिर एक और 5 लाख की चलाई, उसमें से आए. हाँ फिर एक जी. और 5 लाख की चलाई, उसमें से बहुत अच्छे आए. ओके. तो मेरे को टोटल जितने बुकिंग्स हुए मैं वो 15 लाख से डिवाइड करूंगा, उस 5 लाख को संक कॉस्ट में नहीं डालूंगा. आ तो उसके लिए उसको मैं कंसिडर करते हो करना ही आप? पड़ेगा कॉस्ट पर एक्विजिशन. मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, ट्राइंग आउट 100%. डिफरेंट थिंग्स. तो फेल होना इज वेरी नेचुरल. Huh. Something very specific that you have noticed that always works in terms of getting the best ROI in marketing specifically in. See, what is happening is the trends are changing, the algorithms are changing. हाँ जी. I can only tell that what is working now for हाँ जी. next few months, and by the time अगर ये कोई पॉडकास्ट 6 महीने बाद देख रहा है, वो चलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं हाँ है. ठीक है. So UGC content with very not high end editing but a very true natural. मतलब एक बंदा गाड़ी में बैठा है और सिर्फ कुछ स्टोरी बात टेलिंग कर कर रहा रहा है. है तो वो चल रहा है, हाँ. या उस प्रोजेक्ट की गलियों में घूम रहा है और वहाँ का आसपास का सराउंडिंग, ऐसी चीजें चल रही है. और वो आज चल रही है, आगे चलेगी कि नहीं मुझे पता नहीं. आज की डेट में मैं देख रहा हूँ काफी बड़े बड़े डेवलपर्स लाइक एलान, दे आर कॉलिंग इन्फ्लुएंसर्स टू देयर शोज, दैट एरिया वेयर दे हैव क्रिएटेड दैट 3D मॉडल एंड दे गेटिंग देम टू पुट पिक्चर्स ऑफ इट. वो थोड़ा लग्जरी एस्पेक्ट दिखाने का. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज दैट सो अभी समथिंग? मैं जानता हूँ कि M3M डेवलपर्स ने जेकब एंड को के साथ एक प्रोजेक्ट चालू किया हाँ था. जी. एंड मेरा गेस है, ये गेस्टिमेट है, हाँ बिकॉज जी. द काइंड ऑफ द कर्ली टेल्स वाज देयर, अ हाँ लॉट जी. ऑफ बिग गाइज वर देयर Yeah. ऑन दैट, एंड दे विल नॉट कम फॉर फ्री फॉर श्योर. हाँ जी. सो आई थिंक सो, लुकिंग एट दैट, मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ रुपया तो उसने शायद सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बजट रखा होगा. हाँ. राइट. और वो बुला रहा है क्यों? क्योंकि आई बॉल्स. सी, टाइम टू मार्केट है. अगर यही चीज मुझे एक ही रात में पूरी इंडिया को बतानी है कि मेरा ऐसा कुछ लॉन्च है, तो ये इन्फ्लुएंसर्स से ही हो सकता है. राइट. Okay, so that's giving good ROI. गुड ROI, वेरी गुड ROI. Wow, nice. Okay. तो हमने अभी आपसे डेवलपर साइड ऑफ पर्सपेक्टिव तो पूछ लिया. अब अगर मैं चैनल पार्टनर्स पे जाऊँ, वो अपना ROI कैसे निकालते हैं? वो उनके लिए क्या डिफिकल्टीज होती है, क्या चीज़ें मेट्रिक्स होती है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? सी, चैनल पार्टनर्स का पूरा जो बिजनेस है हाँ जी. वो उनके लीड जनरेशन कॉस्ट पर ही है. हाँ जी. सो 3 फिगर्स दैट दे शुड आइडेंटिफाई वेरी वेरी हाँ क्लियरली. जी. वन इज कॉस्ट पर लीड. जिस प्रोडक्ट सेगमेंट में आप लीड जनरेट कर रहे हो, आपकी कॉस्ट पर लीड बहुत कम होनी चाहिए. ओके. डेवलपर अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो 1 करोड़ का फ्लैट बेच रहा है. उस 1 करोड़ के फ्लैट पे आपको सिर्फ 3 लाख कमीशन मिल रहा है, तो आप उस पर इतना खर्चा नहीं कर सकते. सेकंड, आपका कॉस्ट पर विजिट. आपका बंदा कितने लीड्स बाद विजिट निकाल रहा है, उसमें बंदों को पेलो, उनका सिस्टम्स, उनके पिचेस चेक करो, उनका CRM चेक करो कि वो लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं. मैंने हर चैनल पार्टनर के पास जाके उनके कोल्ड कॉलिंग वालों के सिर्फ स्क्रिप्टिंग सुनी है, उनके कॉल सुने हैं, और उसमें छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद लीड का जो विजिट रेशो है वो बढ़ गया है. तो आपका कॉस्ट पर विजिट, अगर आपको लीड 500 रुपए की आ रही है और 10 लीड बाद आपको एक विजिट मिल रही है, यानी 5,000 पर लीड, एज अ CP आप अफोर्ड नहीं कर सकते. राइट. तो आपको उस पर बहुत मेहनत करके ध्यान देना पड़ेगा. और फाइनली आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन 50,000 70,000 के नीचे कैसे आए. एज अ ओनर ऑफ अ CP फर्म आपको यही फोकस करना है. ओके. और उसमें आप रेफरल मॉडल्स लाओ कि एक क्लाइंट से आप कितने रेफरल्स ले सकते हो. देखो, एज अ डेवलपर क्या है, मैं लीड जनरेट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए. अगर वो मेरे पास नहीं खरीदता है तो वो लीड डेड है. एज अ CP आपके पास एडवांटेज है, आप उसको 4 प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो. राइट. तो ऑप्टिमाइजेशन आपके पास है. इन टर्म्स ऑफ योर रेवेन्यू एंड योर पर्सपेक्टिव, क्या बेटर रहता है कि मेरी सेल्स टीम सेल करे या चैनल पार्टनर्स को ही रखूं मैं? क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी सो चाहिए? देयर सिंपल मैथ्स है. हाँ. ठीक है, आज अगर मेरा एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल बता देता हूँ. 550 अपार्टमेंट्स है, 41 फ्लोर्स है, पूना में मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. ओके. 550 अपार्टमेंट्स बेचने के लिए मुझे कम से कम 25 से 30 लोग सेल्स में लगेंगे. ठीक है. फिर मैं एक सेल्स हेड लूँ, टीम लीडर्स लूँ, कोल्ड कॉलिंग की टीम सेपरेट रखूँ, ये सारी चीजें करूँ, एग्रेसिवली मार्केटिंग पे खर्चा करूँ, पेपर एड्स दूँ, होर्डिंग्स दूँ, ये सब करूँ. हाँ जी. अब
ये करूं और उसके बाद भी गारंटी नहीं है हाँ 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 होगा कि नहीं। हाँ जी अच्छा, मैं अपने बंदे को ज्यादा पे लूं, वो छोड़ के चला जाएगा, फिर मेरा हायरिंग कॉस्ट, ये वो सारी चीजें हैं। हाँ हाँ वर्सेस आज वही 550 फ्लैट के लिए मेरे पास सिर्फ 6 लोगों की टीम है हम्म और मेरे पास 100 चैनल पार्टनर्स काम कर रहे हैं जो सक्सेस पे पैसा लेंगे। हम्म। उनको मुझसे क्या चाहिए? मैं पैसा टाइम पे दूं, ये गारंटी चाहिए। मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूं अच्छे से, उनको ये चाहिए। और जब डील क्लोजर होती है, देखो एक कस्टमर को मैक्सिमम क्वेश्चंस या रिस्क ना एंड में लगते हैं, उस टाइम पे मैं उसको सपोर्ट कर लूं। ये ओके 3 चीजें दूं तो सीपी धंधा करेगा ही करेगा। हाँ सो एज अ डेवलपर इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैं क्यों 25 लोगों की टीम पालूं? मैं क्यों उनको तो डेली यू फॉलोअप बिलीव दूं? कि सीपीस के थ्रू ही करना बेटर है। बेटर एंड है। हमने इतनी बातें करी अभी राइजिंग कैक कॉस्ट की, डिजिटल रिलायंस की, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है दैट अ लॉट ऑफ डेवलपर्स आर नाउ और इवन चैनल पार्टनर्स आर रिलाइंग टू मच ऑन डिजिटल लीड्स एंड कंटेंट एंड सोशल मीडिया एज अ होल, कि वो अलग तरीके से लीड जनरेट करना भूल ही गए हैं कम्प्लीटली? सी बिकॉज कंजम्पशन डिजिटल साइड पे है, हाँ सो द अप्रोच इज नॉट रॉन्ग, ओके बट द इंटायर प्रोसेस हाँ दे जी आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग। सी व्हाट डज मार्केटिंग सेज इज, जो टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, जो सब करना है वो करना चाहिए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? टॉप ऑफ द फनल में लीड आ रही है, वो ले रहे, क्वालिफाई नहीं हुई, हटा दो, फिर से और ऐड चलाओ। हाँ उनको ड्रिप मार्केटिंग करना, हाँ उनको कम्युनिकेशन में स्ट्रांग रखना, हाँ उनसे हालचाल करते रहना, उनसे रेफरल आपने निकालना। एक हालचाल हाल फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क भी भी लगा बनाया हुआ दिया, है हाँ। ना? सो ये चीजें वो लोग कर नहीं रहे, तो हाँ होगा क्या? जब मार्केट खराब होगा हम्म तो आपको, और जब ये प्लेटफॉर्म्स लीड देना बंद करेंगे तो आपको इशू आएंगे ही आएंगे। सो अब मैं, इंडिया में हार्डली कोई सीपी है जो अपनी कस्टमर मीट करवाता है। ओके अरे भाई, तुमने लास्ट 1 साल में अगर 20 क्लाइंट बेचे हैं या 100 क्लाइंट को फ्लैट बेचा है, मिलाओ ना, कभी एक बार मिलो। साला दिवाली पे जाके गिफ्ट दो, उनको मिलते रहो, कुछ तो करते रहो। तो जब मिलोगे तो उनको याद आएगा ना कि भाई हाँ, अरे मेरा और एक है। देखो, हर एक बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, आप उसको सिर्फ कुछ पिच तो करो। तो एक बार कस्टमर ने बेच लिया, खरीद लिया, आप उसके साथ टच में ही नहीं हो, यही नहीं हो अगर, क्योंकि बहुत साला चिड़चिड़ा कस्टमर था, बहुत तकलीफ दिया, तो ये सारी चीजें नहीं चलती। So follow the entire process of marketing with them. Yeah, wow, very well said. And finally for this segment, अगर आपको इतनी सारी जो आपने नॉलेज शेयर की है अभी, इसको समराइज करके एक दो लाइन में कोई फाइनेंशियल एडवाइस देनी हो टू सेल्स पीपल, टू सीपीज हु आर इन द रियल एस्टेट मार्केट, what would you like to say looking at the See, camera? from a finance point of view, because my CFO is always behind me, I only, if you're running a CP business or if you're a developer, हाँ जी if you are a developer, one salesperson should give minimum 5 to 6 bookings a month. Your business will flourish. ओके If you're on a CP business, one sales executive yours should average give minimum 2 bookings a month. ओके ओके, उसके बाद आप टीम बढ़ाओ। हम्म बहुत सारे सीपी मिस्टेक क्या करते हैं कि अरे धंधा हो रहा है तो 100 लोग बढ़ा दूंगा, हर एक ने एक बुकिंग भी दी तो 100 बुकिंग हो जाएगी। नहीं होगा। आप 100 लोगों की टीम करोगे ना तो 60-70 बुकिंग पे आ जाओगे। यानी हाँ आपका कॉस्ट पर, यानी एक बंदा आपको बुकिंग जो देगा वो 0.6 बुकिंग देगा। या कैश फ्लो में ये धंधा फेल होगा। ओके ओके। Well, you heard it right here. Great financial advice, great financial tips, and so much knowledge shared. I am trying to process everything because it's an opportunity for me to learn from him as well because you're so knowledgeable. Thank you for sharing थैंक यू that सर। all you are. Now we're moving to my favorite segment, which is called the curiosity gap. यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, बस ये ट्राई करते हैं कि कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करें और ऑडियंस में थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाएं, थोड़ा उनको भी इंटरेस्ट जगाएं कि हाँ आप भी रिसर्च करो, समझो कि क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में. सो वी आर नाउ मूविंग टू दैट सेगमेंट. विल सी यू इन द क्यूरियोसिटी गैप सेगमेंट नाउ. Welcome back. We are now in the Curiosity Gap segment where I have some very interesting topics to talk about, and let's dive right into the first topic. जो मैं एक वर्ड अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू आउट द पॉडकास्ट, विच इज़ कोल्ड कॉलिंग. बिकॉज मेरे को बात करनी थी क्यूरियोसिटी गैप में इस बारे में बहुत डेप्थ में. As a Gen Z, whenever I get a cold call, I'm like, जो भी है काटो या फिर ना उठाओ या whatever. I'm not even listening to the person who's trying to cold call me. In your opinion, cold call का जो ये strategy है was very important back then in like 10-15 years back because सारी leads यहीं से generate होती थी एक time पे.
आज के टाइम पे व्हाट डू यू थिंक, इज इट डाइंग, इज इट बीइंग रीइन्वेंटेड? कोल्ड कॉलिंग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नया देखने को मिल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? सो डेफिनेटली कोल्ड कॉलिंग बदल रहा है. जैसे मेरे आईफोन्स पे सेटिंग है, व्हाट्सएप पे भी सेम सेटिंग है, अननोन कॉल नंबर्स डायरेक्ट साइलेंस कर देता है. Exactly. सो आई डोंट लाइक टू पिक अप कॉल्स लाइक दिस. बट हाउ इट इज गेटिंग रीइन्वेंटेड, आई टेल यू, एंड चैनल पार्टनर्स और डेवलपर्स शुड try this model and we are trying it and we are getting a lot of success. Okay. जब भी कोई बंदा लीड भरता है तो हम उसी को पूछ लेते हैं, what would you prefer from us, a call, Okay. or a live chat, or only messaging on WhatsApp? Okay. अब हम ये पूछते हैं. इंटरेस्टिंग है, आज से 1 साल पहले 100 में से 80-85 लोग कहते थे कॉल करो. Okay. अब ये नंबर आ गया है 60 पे, यानी 40 लोग ये जानना चाहते हैं कि आई वुड ओनली लाइक टू टॉक ऑन मैसेजिंग. Okay. ओके, सो व्हाट वी डू इज हमने व्हाट्सएप चैटबॉट्स लगा दिए हैं. तो जो क्या होता है, व्हाट्सएप चैटबॉट्स पे हम सिस्टमैटिकली उसको ड्रिप सेट करके रखा है. जैसे ही वो व्हाट्सएप सिलेक्ट करता है, इमिडिएटली उसको व्हाट्सएप चला जाता है, उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस है. उसके बाद हम वहाँ पे वापस लीड क्वालिफायर लगाते हैं कि अब आपको साइट विजिट करनी है या हमसे बात करके और सवाल पूछने हैं. तो वहां से मेरा एटलीस्ट क्या हो रहा है, मेरा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा साइट विजिट रेशियो बढ़ा है, वो मार्जिनली बढ़ा है, लेकिन मेरा लीड अनक्वालिफिकेशन रेशियो काफी कम हो गया है. यानी अभी कस्टमर मुझसे ज्यादा बात कर रहा है. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स इट शुड बी लाइव, एंड इज ऑल एजेंटिक एआई. Okay. Now and generative AI. So what we have done is हमने वॉइस एजेंट्स क्रिएट कर लिए हैं. हाँ जी. अपने प्रोडक्ट का नॉलेज बेस पूरा दे दिया है. और हम कस्टमर को क्लियरली बता रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस पुशिंग यू हार्ड, वुड यू लाइक टू टॉक टू एन एआई एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. ऑटोमेट भी हो जाता है प्रोसेस, प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है. तो हमने वहां पे क्लियरली डाला है. तो अब एजेंटिक एआई बात करेगा चैट वॉइस कॉल पे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो लैंग्वेज उनको चाहिए, और लीड फिल्टर करके मुझे दे देगा. सो दिस इज हाउ इट शुड गेट, इट विल हैपन इन फ्यूचर. तो आपने ऑटोमेशन की जैसे बात करी, आई वांटेड टू नो, कभी ऐसा टाइम आएगा रियल एस्टेट में कि ऑटोमेशन ही क्लोज कर रहा है डील्स, और अगर नहीं आएगा तो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन दैट यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन तो ज़रूरी है ही है? सो ऑटोमेशन कितना भी कर ले, ये सिर्फ लीड जनरेशन लेवल तक ही होगा या साइट विजिट तक ही होगा. ओके. जो लोग बहुत फोकस कर रहे हैं AR VR, ये वो सब चीज़ें, इट इज़ नॉट वर्किंग एंड इट विल नॉट वर्क. ओके. सो entire efforts should go on generating a lead and motivating him to come for a site visit. Okay. That is how you should stop your entire focus there, and then that will is great But for आगे real जाके estate. डोंट यू थिंक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि पूरा, बिकॉज आज के डेट में दुबई जैसे रियल एस्टेट मार्केट्स में लोग फोन पे ही खरीद रहे हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, दे बाइंग इट लाइक दे बाइंग क्लोथ्स. सो अभी देखिए यहाँ पे भी लोडा ने ब्लिंकिट पे चालू कर दिया था कि फार्म प्लॉट्स खरीद लेंगे. हाँ. सो इंडिया ऑल्सो दैट यू कैन डू इट. एटलीस्ट वेदर वो मीम था या एक्चुअल था वो देखा तो नहीं, बट इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर हुआ था वो. ओके. सिर्फ वहाँ पे कौन से लोग खरीद रहे हैं ऑटो, वो एक बार तो साइट विजिट देख रहे हैं. वहाँ पे क्या चल रहा है, जिस बंदे ने 3 या 4 फ्लैट MR से ले लिए हैं, वो फिर नेक्स्ट फ्लैट के लिए MR में कर रहा है. ओके. सो ऑटोमेशन इज इन द ईज ऑफ बाइंग बट नॉट इन द डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग के लिए कस्टमर विजिट कर रहा है, देख रहा है, सब कुछ है. और फर्स्ट टाइम होम बायर है किसी भी नए ब्रांड के साथ, तो वो कभी भी रियल टाइम खरीदेगा ही नहीं. तो वो है. दूसरा फ्यूचर बताया जा रहा है, AI आएगा. अब ब्यूटी क्या है रियल एस्टेट में, देखो AI बहुत सारे जॉब्स खाने वाला है, लेकिन सबसे कम जॉब्स वो खा पाएगा वो रियल एस्टेट सेल्स में. ट्रू, बिकॉज़ इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स. एग्जैक्टली. सो मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर है रियल एस्टेट सेल्स वालों का उस हिसाब से. तो फिर अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू नो इज दैट कोई, आप जैसे आपका चैनल का नाम है सेल्स प्लेबुक, कोई ऐसी प्लेबुक है आपके पास कोई जो 7 टच सीक्वेंस बताती हो कि एक कोल्ड रीच को या कोल्ड लीड को आप हॉट कर दो ये 7 स्टेप्स फॉलो करके? सो देख, कोल्ड रीच को हॉट करने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे इशू क्या है, जब कोल्ड कॉलिंग वाला करता है ना, वो बहुत एंग्शियस होता है कि ये जल्दी साइट विजिट करे, हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, ये करेगा, और उस वजह से ना आप उसको अनक्वालिफाई कर देते हो लीड को जल्दी. एज ए कोल्ड कॉलिंग पर्सन योर ऑब्जेक्टिव इज, मतलब आपको ना वो शक्ति कपूर बनना है, क्राइम मास्टर गोगो की तरह अंदाज अपना कि आया हूँ कुछ तो लेकर ही जाऊंगा. अब क्या है, वो साइट विजिट नहीं दे सकता, तो क्या दे सकता है, कम से कम
एक जूम कॉल दे सकता है तो वो लेने की कोशिश करो। अच्छा जूम कॉल भी नहीं दे सकता है तो वो कम से कम ये दे सकता है कि सर मैं अगली बार कॉल करूंगी तो कॉल उठा लेना, हम बात कर लेंगे, तो ये ले लेना। अच्छा वो भी नहीं दे रहा है, कि वो भी नहीं बता रहा है, तो सर ठीक है मैं ये मैसेज भेजता हूँ, उसको पढ़ के रिप्लाई कर लेंगे क्या? सो द पॉइंट इज आप बहुत छोटे से, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप पहले ही कॉल में चाहते हो कि वो साइट विजिट कर ले, वो नहीं होगा। सो यू हैव टू फार्म दैट ऑल्सो। यू कांट बी अ हंटर के मैंने मारा और शिकार हो गया, नहीं। स्लोली स्लोली फार्म इट, इट विल come to that. Okay, fair, yeah. Thank you. I think that's enough discussion on this topic. और इससे एक अलग टॉपिक का कनेक्शन भी बनता है, which is like you mentioned, sales लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. Sales as a career, not just in real estate, maybe as a holistic. What do you think is the future of it? Should people actually focus on building careers in sales? जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो कुछ भी नहीं करता वो सेल्स करता है, हाँ. एंड सेल्स वाले पुशी होते हैं, सेल्स वाले ये है। तो उन लोगों ने ना, क्या होता है, बिकॉज इसलिए फिर ये बहुत सारे जो यंग बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो ये करियर को चूज नहीं करते। बट आपने वर्ल्ड के टॉप लोगों को देखा ही नहीं है सेल्स करते हुए। आप IBM या सॉफ्टवेयर सेल्स देख लो, आप टेक्नोलॉजी सेल्स देख लो, आप रियल एस्टेट के अच्छे सेल्स वालों से मिलो, आपका परसेप्शन बदल जाएगा। Okay. एंड the career, the only career where one, you will make a lot of money. Okay. Yeah. Two, the opportunity to become an entrepreneur or the CEO is the highest in sales. हाँ जी, हाँ जी. Third, the only industry where you will always be young. You have to dress well, you have to look well, you have to, मतलब ऐसा मोटा टकला फटा हुआ एकदम गंदे कपड़े वाला सेल्स वाला तो चलेगा ही नहीं। तो he has to spend on his grooming, Yeah. spend on his health, spend on his knowledge. So that is the industry that is sales is. वो साइक्लिकली एक हेल्प ही होता है अपने आप को, या होता है। So हेल्दी रख you रहे हो. look nice, you feel nice, you're meeting new people, you are learning so much. Yeah. So there has been bad days but never a dull day in sales. मतलब ऐसा हुआ है कि आज मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा धंधा नहीं हुआ, लेकिन कोई भी दिन एक्साइटमेंट से कम नहीं है, एंड दैट इज सेल्स। आई थिंक हाँ, सेल्स अगर कोई बंदा क्रैक कर ले तो, एंड ही कैन सेल एनीथिंग, ही इज मेड इट इन लाइफ, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप देखो ना, 140 करोड़ की आबादी है अपनी, कितने लोग सेल्स कर रहे हैं? बाकी सब लोगों में है, MBA है, MBA में कोई सेल्स सिखाता नहीं है, कोई अच्छी तरीके से, कोई मतलब देयर इज नो फॉर्मल डिग्री फॉर लर्निंग सेल्स। या एग्जैक्टली, नोबडी इज टीचिंग यू सेल्स। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को सेल्स में अपना करियर बनाना है, वेयर शुड ही स्टार्ट और शी स्टार्ट, एंड व्हाट शुड दे फोकस ऑन? सी मुझे पर्सनली क्या लगता है, आप पूरा एकेडमिक्स का फोकस सोच लो, देख लो। जो बंदा प्रोफेसर बनता है वो पढ़ाई करता है, पेपर्स, रिसर्च पेपर्स लिखता है, पब्लिश करेगा, ये करेगा, ये सब मेंटालिटी से वो प्रोफेसर या ऐसा PhD करेगा, ये सब। अब साला सेल्स वाला ये कभी कर ही नहीं सकता, तो वो कभी सिखा ही नहीं सकता, तो वो किसी कॉलेज में मिलेगा नहीं, तो सेल्स कौन सिखाएगा? रियल टाइम लाइफ। इसलिए जब मैं पहले पॉइंट बोल रहा था कि मैक्सिमम जगहों पे जाओ, साइट विजिट्स करो, हर डेवलपर कैसे बेचता है ये देखो, इससे बड़ा कोई MBA है नहीं। Okay. So that's the only way, experience. Best way. I mean, there are ways to read books, learn processes, ये वो, but बहुत लंबा प्रोसेस है। Okay. 3 महीना सिर्फ हर बिल्डर के पास जाओ, देखो वो कैसे बेचता है, आप खुद ही मास्टर बन जाओगे। Fair. Another thing, this is the next topic that we're moving on, that I wanted to talk about was, आज की डेट में कभी कभार ऐसे होता है, लाइक आई लुक एट DLF, वो अपना कोई नया प्रोजेक्ट निकालता है, दे से दैट एक दिन में 500 करोड़ की सेल हो गई, सब बुक, सब सोल्ड आउट. कैन सेल्स एवर बी अ competitive moat for a developer, for a CP? तो ऑब्वियसली यस इट कैन बी. अगर वो सेल्स अच्छी करता है तो वो अच्छी क्लाइंटेल ला सकता है, वो अच्छे डेवलपर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है. बट कोई डेवलपर के लिए ऐसे हो सकता है कि हम अच्छा बेच देते तो हमारा तो बेस्ट ही है प्रोडक्ट. यही मोट है, अच्छा, सेल्स ही मोट है और Okay. कुछ नहीं है. ओके. देखो, एक है सबसे बड़ा जो चैलेंज, दो ही इंडस्ट्री के चैलेंजेस है रियल एस्टेट. एक है लैंड एक्विजिशन हाँ जी, और एक है बेचना. हाँ जी. बेचने के बाद तो सिविल इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लम्बिंग, वेंडर्स, ये सब के आपको चॉइसेस है. मच्योर्ड इंडस्ट्रीज है, ओवर 100 years से चल रही हैं. हाँ जी, सो द प्रोसेस आर सेट, यू विल गेट पीपल देयर, हाँ जी. राइट. अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि DLF बोल रहा है कि ये एक दिन में मैंने 500 करोड़ बना बेच दिए वगैरह. सो इंटरनेट में इसको, मतलब जो आप बोलते हैं ना कि बेस्ड ऑन ड्रॉप्स, आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो ये वैसे ही है. एक दिन में सेल दिखती है, लेकिन उसके लिए 6 महीने बंदे काम कर रहे हैं, टोकन्स उठा रहे हैं, साइट विजिट्स कर रहे हैं, और एक ही दिन जब वो टोकन्स ओपन करके बुकिंग कन्वर्ट करते हैं तो वो उसको बोला जाता है. मैंने कहीं पे सुना था दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, ये जो CPs होते हैं या सेल्स वाले लोग होते हैं, ये बुकिंग अमाउंट दे के बुक कर लेते हैं, एंड दैट इज
is also considered कि हमने इतने वैल्यू का प्रोडक्ट सेल कर दिया तो वो अपने सेल्स में दिखा देते हैं as सो ये marketing. जनरली क्या होता है, जहाँ पे कंप्लायंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है वहाँ पे चलता है. पूना मार्केट में रेरा कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग है. अच्छा. तो आज अगर मैंने अधिराज के नाम से चेक उठा लिया है, ₹1,00,000 का टोकन ही क्यों ना हो, हाँ. विद इन सर्टन टाइम मुझे वो रेरा में रिपोर्ट करना पड़ता है ये बुकिंग है कि नहीं है. ओके. और नहीं है तो मुझे वो चेक रिफंड करना पड़ता है. ओह. सो दैट सर्टन मार्केट्स इट डजंट चल, बट वर्क अराउंड्स बहुत है, इसलिए वो थोड़ा मार्केटिंग हाँ. गिमिकी टाइप से. द प्रॉब्लम दैट कस्टमर, अगर हमने सेल्स वालों के लिए बहुत बात की, द प्रॉब्लम अगर कोई कस्टमर ये सुन रहा है ना, जो घर खरीद रहा है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो एक मार्केटियर के लिए, एक सेल्स वाले के लिए आसान है इंडियन कंज्यूमर को फंसाना. इंडियन कंज्यूमर ना हर्ड मेंटालिटी में बहुत चल जाता है रियल एस्टेट में. जहां भीड़ दिखी, जहां हाइप दिखी, यार खतरनाक होगा, उठा लो. अब उस टाइम पे वो ना सोचता है ना क्या करता है. एंड व्हाट विल हैपन इज ना, ये एक हर्ड मार्केटिंग या हर्ड सेलिंग जो है, ये कभी ना कभी ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 साल में. ओके. बिकॉज जितने लोगों को फिर बुरे एक्सपीरियंस आएंगे, वो नेक्स्ट टाइम लेंगे नहीं, वो फैलाएंगे कि मत करो ये वो. एंड दैट इज व्हाट वी शुड अवॉइड इन रियल एस्टेट सेल्स. एंड सेल्स एज एन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ चर्न बहुत ज़्यादा होता है. आज हायर किया, कल फायर किया, बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. आपने रिजल्ट ला के दिया तो आप अच्छे हो, आपने नहीं ला के दिया तो आप नहीं अच्छे हो. उस ऐसे इंडस्ट्री में थ्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल कि क्या वो ऐसा करे, क्या अलग करे, क्या इनकलकेट करे? मुझे, मेरे को तो आपकी बातें सुन के, आप मेरे को कुछ बेचोगे तो मैं तो शायद खरीद ही लूँ. करेक्ट. में जो एक वो यूनिकनेस है, वो जो टच है, वो नेचुरली आया है, कुछ आपने इनकलकेट किया है? हाउ कैन पीपल वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग लाइक यू? सी द प्रॉब्लम इज, इसमें सोल्यूशन, एक आपके आंसर का सोल्यूशन बहुत सिंपल है. पहला तो आपने फनल पे किसी भी सेल्स वाले का ध्यान नहीं होता. ओके. फनल क्या होता है, जितने लोग मेरे पास हैं, अब सेल्स वाला क्या करता है, कोई एक लीड आई, उसको बात किया, उसको साइट विजिट करवाई, उसको कन्वर्ट किया, उसकी एग्रीमेंट कराई, पूरा एनर्जी उस पर फोकस हो जाता है. अब वो नए कस्टमर पे फोकस नहीं कर रहा है. सो सेल्स इज अ कंपार्टमेंट वाइज प्रोसेस. कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मैं सिर्फ अपने टॉप ऑफ द फनल पे नए लीड्स जनरेट करके चर्न करूंगा. फिर 2 बजे से 4 बजे तक जो मुझे इस वीक मिलने वाले हैं साइट विजिट के लिए, मैं सिर्फ उनको ही फॉलो अप करूंगा. और 4 से 6 जो मेरे एकदम बुकिंग के नजदीक हैं, उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते रहूंगा ताकि उनकी एक्साइटमेंट बनती रहे. राइट. तो ये कम, अब वो सुबह आता है, वो पहले तो अपने सिगरेट पीने में, अपने ऑफिस के गप्पे में ही हालत खराब है. तो जैसे नारायण मूर्ति कहते हैं, इट्स अ 70-hour वर्क वीक जॉब. एंड यू हैव टू time box yourself that this is only for top of the funnel, this is middle of the funnel, this is bottom of the funnel. तो ये आपका साइकिल कभी ड्राई नहीं होगा. आपका फनल कभी ड्राई नहीं होगा. वरना टिपिकल सारे सेल्स वाले साइक्लिकल हैं. 1-2 महीना अच्छी बुकिंग देंगे, फिर 3-4 महीने ड्राई, क्योंकि उन्होंने जिस महीने उन्होंने बुकिंग दी वो सिर्फ बॉटम ऑफ द फनल पे थे. फिर वो वापस टॉप ऑफ द फनल शुरू करते हैं, फिर उसको मिडिल पे ले जाते हैं, फिर वो जब क्लोज होगी तब क्लोज होगी. सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. That makes sense. Very well said. Thank you for coming on the podcast. My pleasure, Adhiraj. Thank you for sharing all that you did. Before you go, एक कोई book या एक कोई podcast, हमारा podcast भी बोल सकते हैं, जो लोगों को definitely पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए to actually understand more in depth what you have spoken about today, and which will actually help them a lot. So there is this one book I would recommend. I'm just forgetting the author's name, but the name of the book is The Ultimate Sales Machine. Okay. Fantastic book. सारे processes उसमें define किए गए हैं. और वो book अगर आप पढ़ोगे, और point क्या है, उसको पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे sales वाले क्या करते हैं, ऊपर से glance करते हैं, छोड़ देते हैं. Okay. I have personally read that book at least 7 times. Okay. और मार्क्ड है. और उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन के भी स्ट्रैटेजीज है. क्या अब ये महीने में ये इम्प्लीमेंट करूंगा, अगले महीने में इस बुक का ये इम्प्लीमेंट करूंगा. सो लिव दैट बुक. ओके. सेकंड बुक, अ वेरी स्मॉल बुक. ओके. इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन सेल्स, ओके, एंड आपको ये डर लगता है कि सेल्स वाले, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा कलीग ही मेरी डील्स काट रहा है, मेरे साथ बहुत रेटिज्म हो रहा है, मेरा बॉस मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है. इट्स द वेरी ब्यूटिफुल बुक टू
पूरा रिफ्रेश योर माइंड इज द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड. ओके. वेरी स्मॉल बुक. उसमें कुछ ऐसे 30 चैप्टर्स हैं जो 4-4 पेज के हैं. इट्स अ गुड स्टोरी. ओके. और हर दिन सिर्फ एक ही स्टोरी पढ़नी है. ठीक है. ओके. हाँ. और इतना ब्यूटीफुल बुक है कि सेल्स से प्योरेस्ट जॉब कुछ है ही नहीं. ओके. एंड दिस बुक विल मेक यू मोर प्योर फ्रॉम इनसाइड. इन बुक्स के साथ कोई एफिलिएशन तो नहीं है ना आपका? कोई भी क्या वो बुक्स सारे पुराने बुक्स हैं. कोई कमीशन तो नहीं मिल रहा है ना आपको? Because वो माइंडसेट ही ऐसे है कि आपने कोई बुक बताई है तो आपका कुछ यहाँ पे फायदा होगा. हाँ मिलेगा ना. आप मुझे फॉलो कर लोगे प्लेबुक पे तो मुझे मिल जाएगा. Follow Sales Playbook on Instagram. Follow me also. Before you go, एक हमारे पॉडकास्ट का भी रिवाज है. आप अपने सेल्स में पता नहीं क्या करते हो फाइनली, बट हम क्लोज करते हुए एक आपसे एक शेड साइन करवाते हैं. तो आपके पीछे एक पेयर ऑफ शेड्स और एक पेन पड़ा हुआ है. एक लेंस पे आप उसको उठा लो, अभी उठा लो. एक लेंस पे साइन कर देना, एक लेंस पे अपना नाम लिख देना. ओके, अमेजिंग. एंड ये अब एक बार पहन के दिखा दो कैमरा में. हाउ कूल यूर लुकिंग. I'll use this as a thumbnail or something. So this will be like a memory piece that I will always keep with me. कि मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था. मेरा काफ़ी टाइम से प्लान है कि यहाँ पे मैं ऐसे शेल्व्स लगवाऊंगा और वहाँ पे अपने शेड्स रख दूंगा जिन जिन के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था. So yeah, that's Mr. Sandeep. Sell more in life. Yes, that's Mr. Sandeep Israni on my podcast, and that's me as usual, Adhiraj Sethi, signing out. Don't forget to like, share, and subscribe. You guys know the drill. We'll see you in the next one.